Good morning, students. As you know that we are doing the chapter number 5th, that is money. We have already done about the introduction, barter system, its limitations, then definition of the money supply, measures of the money supply, high powered money. We are doing the power booster concept as given in the last pages in the money chapter. We have done here about the functions of money. In the previous lecture I have discussed about the function of money, primary function, secondary function. Primary function the under medium of exchange, measure of value. Secondary function the under standard of deferred payment and store of value. We have already done all these concepts, how the money has overcome the drawbacks of the barter system topic, then evaluation of money, definition of money, legal definition, functional definition, definition on the basis of liquidity, definition on the basis of the scope, then classification of money, full bodied money, representative full bodied money, two kinds of the representative money, convertible paper money, inconvertible paper money, credit money. Credit money they under various forms like token coins, representative token money, circulating promissory note issued by the central bank, demand deposits in a bank. Now up till this point we have done already in the previous lecture. Now come to the next question, that is a contingent function of the money. Various contingent function of money are number 1 distribution of the national income. ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਔਰ ਮਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫॉर्म ਆਫ ਦੀ ਰੈਂਟ, ਵੇਜਿਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਫॉर्म ਆਫ ਦੀ ਰੈਂਟ, ਵੇਜਿਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਨੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ from buying that commodity MUX is equal to PX। और प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ by equating the marginal productivity of a factor with the price of such factor। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ basis of the credit creation। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ credit creation by the commercial bank was not possible until money was introduced। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫॉर्म ਆਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ money increases the productivity of a capital, it is the most liquid asset, it can be used to any use, so due to liquidity of the money capital can be easily transferred from less productive use to the more productive use। ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੋਂ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਰਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ purchasing power in the hand of the person bearer holding it, and it has a numerous option for its use। bearer can change his decision regarding the use of money from time to time। मतलब जिस person को money है वो अपनी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ from time to time, from place to place, depending upon urgency, intensity and priority। next is a guarantee of solvency। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਨਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਆਫ ਇਟਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੀਪਲ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਲਈ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन ऑफ द मनी। बच्चे ये अंडर है कि मनी कि फंक्शन परफॉर्म कर रही है। स्टैटिक का मतलब होंगे कि जोड़े हैल्प करते हैं इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी के अंडर
फॉर एग्जाम्पल फंक्शनस ऑफ मनी लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इस अलावा जड़ा वै मेयर ऑफ वैल्यू, दैन स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो मनी जी वै हैल्प कर रही है, मनी जोड़े फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और ऑल दी स्टैटिक फंक्शन, बिकॉज विदाउट दिस फंक्शन इकोनॉमी कांट वर्क, इस तो बिना इकोनॉमी काम नहीं कर सकती। सो ये सारे फंक्शन हैल्प करते हैं मनी नूं चला, मनी ये हेल्प नाल इकोनॉमी दे विच जिहड़ा वै मतलब ट्रांजैक्शन कैरी आउट करती है। जोड़े 4 फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेयर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दीज आर ऑल दी स्टैटिक फंक्शन। नाउ कम टू द डायनामिक फंक्शन। ये वो फंक्शन है जोड़े कि इकोनॉमी के मूवमेंट एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी लियाते हैं, और ये डायनामिक है और डिटरमिन करते इकोनॉमिक ट्रेंड्स नूं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी क्रैडिटेबिलिटी, लिक्विडिटी दे नाल इकोनॉमी चेंजिज आती हैं, ठीक है। और जिन्नी फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट ऑफ मनी इज़ नॉट ओनली लीड टू राइज इन द प्राइस लैवल बट आल्सो इंक्रीज द लैवल ऑफ द इनकम, आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट। ये मनी के फंक्शन के करके इकोनॉमी लैवल ऑफ इनकम वधदा है, आउटपुट वधदा है, इंप्लॉयमेंट वधदा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट उत्ते ही जिहड़ा वा मनी की हैल्प के नाल ही इकोनॉमी जिहड़ा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसैस फुलफिल किया जाता है। नैक्सट, सो बोथ स्टैटिक ते डायनेमिक फंक्शंस आर नीडिड फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ कम टू द डिमांड फॉर मनी। इस अलावा पीपल मनी नूं डिमांड करते हैं, काहदे लई विच डिमांड करते हैं, कमोडिटीज़ नूं बाय करन दे लई सच एज राइस, वीट, क्लोथ्स एक्सैक्ट्रा, क्योंकि इन्हां गुड्स की यूटिलिटी है। और मनी डज नॉट पोजैस एनी यूटिलिटी, डायरैक्टली मनी सैटिस्फाइड नहीं करती, लेकिन जिहड़ियां पीपल चीज़ों नूं बाय करते हैं विद द हैल्प ऑफ द मनी, उहदे करके इकोनॉमी जिहड़ियां साडियां वांट सैटिस्फाइड हुंदियां। तो मनी, वाई डू पीपल डिमांड मनी, पीपल क्यों डिमांड मनी की करते हैं। इनू स्टार्ट करने तो पहले असीं देखांगे कि जिहड़े 3 मोटिव्स है जिहदे लई मनी चाहिदी है। दीज आर नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पैकुलेटिव मोटिव। नंबर ए ट्रांजैक्शन मोटिव, इसका मतलब की है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए मनी की नीड है, मनी जरूरी है। जिस तरह एक हाउस होल्ड बंदे का जो खर्चा है वो अपनी इनकम तो कंप्लीट करता है, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द परसपैक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन, जिन्होंने बिजनेसमैन को भी मनी चाहिए है बिजनेस मोटिव के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। और ट्रांजैक्शन ऑफ द मोटिव रिलेट टू द डिमांड फॉर मनी, इस करके मनी की डिमांड की जाती है टू मीट द करंट ट्रांजैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द बिजनेस यूनिट। मतलब इंडिविजुअल को भी मनी चाहिए है, बिजनेस को भी मनी चाहिए है, बिकॉज इनकम जी परसन लेंदा है वो कंटीन्यूस नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर कंटीन्यूस है। जोड़ा दोनों के गैप है, जो इनकम रिसीव हो रही है, जो खर्चा हो रहा है, दोनों के विचकार जोड़े गैप को कवर करने के लिए पीपल अपने कोल कैश रखते हैं, क्योंकि इनकम तो इक्को टाइम आनी है लेकिन खर्चा कंटीन्यूस है। सो अकॉर्डिंग टू द केन्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ एसोसिएटेड विद द लैवल ऑफ इनकम। जिन्ना इनकम ज़्यादा होएगा उन्नी मनी की जड़ी वै साढ़े को लार्जर साइज ऑफ द मनी होल्डिंग होएगा फॉर वेरियस ट्रांजैक्शनस। बी पॉइंट है प्रिकॉशनरी मोटिव। इस अलावा पीपल मनी को क्यों डिजायर करते हैं, क्यों होल्ड करते हैं, जोड़ा अनफोरसीन कंटीजेंसी के लिए पीपल अपने को मनी रखना चाहते हैं। रिस्क अनफोरसीन कंटीजेंसी के लिए लाइक इवेंट सिकनेस एक्सीडेंट अगर कोई हो जाए तो मनी को होल्ड किया जाता है। ये डिपेंड करता नेचर ऑफ द इंडिविजुअल उत्ते, ऑन द कम्युनिटीज़ उत्ते। तो डिमांड फॉर मनी को असीं प्रिकॉशनरी बेसिस के लिए जोड़ा मतलब ये रिलेटेड है विद द हायर लैवल ऑफ द इनकम, मोर विल विद द कैश बैलेंसिस फॉर कंटीजेंसी। असीं रिस्क के लिए आने वाले एक्सीडेंट या कोई अनसीन कंटीजेंसी के लिए मनी को होल्ड करते हैं। जिन्नी इनकम ज़्यादा होगी उन्ना ही असीं कैश बैलेंस ज़्यादा रखांगे। अगला 5.2 अगला नैक्सट क्वेश्चन 5.21 पेज से ट्रांजैक्शन मोटिव वर्सिस द प्रिकॉशनरी मोटिव। तो पहला पॉइंट है बच्चे, ट्रांजैक्शन मोटिव के अंडर असी मनी को होल्ड करते हैं ऑर्डनरी ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन प्रिकॉशनरी मोटिव के अंडर असी अनफोरसीन कॉन्टीजेंसी के लिए मनी को होल्ड करते हैं। अगला सैकेंड पॉइंट है अंडर द ट्रांजैक्शन मोटिव जोड़ा मनी को जेकर असी होल्ड करते हैं वेरी कन्वीनियंट है इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड्स, इट इज़ सर्टन। लेकिन अंडर द प्रिकॉशनरी मोटिव इट डिपेंड करता डिग्री ऑफ द अनसर्टनटी उत्ते। मनी जेकर वॉर फाइनैशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उदों असीं ज़्यादा मनी होल्ड करते हैं, ज़्यादा संभाल के मनी रखते हैं, कैप्ट करते हैं। लेकिन जो साडी नॉर्मल कंडीशन चल रही हैं दैन लैस मनी इज़ कैप्ट। सो इन जनरल कैश बैलेंसिस आर हेल्ड फॉर द ट्रांजैक्शन and precautions are depend upon the level of the income.
सो ये बच्चे की पॉइंट लिखा गया एक तरह दियाँ भी कि ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर रहे हैं ये की परपस है कि किस परपस के लिए असी जोड़ा वै ट्रांजैक्शन कड़ी कैरी आउट कर रहे हैं और किहड़े परपस लिए असी जोड़ा मनी नूं होल्ड कर रहे हैं। फिर स्पैकुलेटिव मोटिव बहुत ध्यान दे नाल पॉइंट देखना है कि जोड़ा होल्डर है बच्चे वो अपने को कैश बैलेंस रखता है काहदे लई जेकर उन्हें कोई एसट वगैरह च पैसा लगाना है फाइनैशियल एसट लाइक बॉन्ड्स का मतलब शेयर्स विच शेयर एक स्पैकुलेटिव मोटिव साडा हुंदा है कि पीपल अपने को कैश रखते हैं कि शेयर विच पैसा लगाते हैं डिपेंड करता है कि बॉन्ड्स विच पैसा लगाने दे नाल तुहाडियां एक्सपैक्टेशनस कितनी है जे तो तुहानूं रिटर्न ज़्यादा मिल रही है फिर तुसी ज़्यादा पैसा जोड़ा वै शेयर्स बॉन्ड्स विच लगाओगे और लेकिन जेकर तुहानूं रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरस्ट का मतलब होंदा कि वही अमाउंट तुसी किसी नूं लोन दे दो वो बदले तुहानूं ब्याज मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरस्ट जेकर ज़्यादा मिल रहा है तो फिर असी जोड़ा वै एसट विच पैसा घट लगावांगे एसट का मतलब बॉन्ड्स शेयर्स विच पैसा घट इन्वेस्ट करांगे तो इंटरस्ट रेट वेरीज इनवर्सली विद द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ जे मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ ज़्यादा वै रेट ऑफ इंटरस्ट घट है तो असी शेयर्स विच पैसा जोड़ा इन्वेस्ट करांगे दैन गिविंग द लोन टू समबडी एल्स जे इंटरस्ट रेट वध रहा है सानूं ज़्यादा रेट मिल रहा है किसी को ब्याज ज़्यादा मिल रहा है फिर वही अमाउंट असीं किसी नूं लोन देवांगे दैन जेकर साडियां मार्केट वैल्यू एसट की घट रही है शेयर की वैल्यू घट रही है असीं उहदे च पैसा नहीं लगावांगे वी विल नॉट इन्वेस्ट दी मनी इन द शेयर रादर वी गिव दैट मनी टू समबडी एल्स सो दैट वी कैन गैट दी इंटरस्ट ठीक है इन रिटर्न सानूं इंटरस्ट मिल जाए असीं वो अमाउंट किसी नूं लोन दे देवांगे सो डिमांड फॉर दी स्पैकुलेटिव मोटिव बिकम्स लैस एज हाई जिन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट बचे ज़्यादा होएगा और स्पैकुलेटिवली डिमांड घटेगी और जेकर लो रेट ऑफ इंटरस्ट होएगा फिर इसकी डिमांड बढ़ेगी इस शेयर्स में ज़्यादा पैसा लगावांगे। सो दीज वर द थ्री मोटिव्स फॉर विच द डिमांड फॉर मनी इज़ क्रिएटेड। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ वेरीअस मॉनेटरी स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए जाते हैं मॉनेटरी हिस्ट्री ਸਾਨੂੰ क्लीयर कर दी इस बारे। प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम कौन मैनेज कर रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ बाय द RBI। RBI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨਕਨਵਰਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੁਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ऑल ट्रांजैक्शन आर मेड इन टर्म्स ऑफ द रुपीज़ सारिया ट्रांजैक्शन असी रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। नोटवर्दी पॉइंट्स किहड़े मॉनेटरी सिस्टम के नंबर 1 मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है RBI फॉर इंडिया। RBI ਨੂੰ राइट है कि इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ मनी सप्लाई करन दा। पेपर करंसी स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है पेपर के नाल नोट बनते हैं। कॉइनस लिमिटेड लीगल टेंडर लिए यूज़ करते हैं स्मॉल पेमेंट लिए यूज़ करते हैं लेकिन पेपर में नोट्स आर यूज फॉर दी अनलिमिटेड लीगल टेंडर और मेकिंग दी एनी अमाउंट एंडलैस अमाउंट अनलिमिटेड अमाउंट लिए असी जोड़ा पेपर नोट यूज़ कर रहे हैं। RBI को सोल मोनोपली इकली अथॉरिटी है कि करंसी नोट इशू करने ₹2 एंड अबव ₹2 एंड अबव तो बाद जोड़े अमाउंट है हायर अमाउंट दे RBI इशू करता है लेकिन जो ₹1 नोट है दैट इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल कोइंस आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग ऑल दी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन रेस्ट विद द RBI। ये कौन डिसाइड करता बच्चे RBI डिसाइड करता है। इंडिया फॉलो कर रहा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर द नोट इशू। इस सिस्टम के अंडर RBI नूं चाहिए कि अपने कोल जड़ा वै टू कीप ए मिनिमम रिजर्व अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड फॉरन एक्सचेंज ₹200 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ द RBI कैन इशू द नंबर ऑफ द नोट्स। नोट जोड़े फ्री इशू नहीं किए जाते उसदे लई मिनिमम रिजर्व रखना पैंदा है। कितना मिनिमम रिजर्व है गोल्ड एंड फॉरन एक्सचेंज का फॉरन करंसी का अबाउट 200 करोड़ वो अमाउंट बैलेंस होना चाहिए तद वो इकोनॉमी जोड़ा नोट इशू कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी मनी चैप्टर। ठीक है बच्चे तो अच्छी तरह देख लेना जोड़े जोड़े कंसैप्ट असी मनी के किए हैं क्लीयर कर लेना। फिर भी जो किसी बच्चे तो कोई डाउट कोई क्लैरिटी कोई क्वेश्चन रहा दैन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।